Okay, we are moving with the further topic, and that is a structure of pollen grain. Here it is showing a sporoderm layer that is mainly divided into exine and intine, which is shown in the figure. Where the exine is lacking, that part is known as the germ pore, having a generative cells, or you can say is the cell which is going to be divided and transfer and form the male gametes. The other nucleus is the tube nucleus, or you can say that is the nucleus which is responsible for the formation of the tube when the pollen grain is set on the surface of the stigma. Okay, so here this is the structure of the pollen grain, and it having prominent cytoplasms along with the dense granules and vacuoles within that. So here I would like to share along with this thing with a diagram. So let us see that things. Okay, see, it's a very easy diagram or structure you can say about. Okay, there is a presence of the pollen grain, okay, which having a layer, and that is red color portion, that is a exine. Where the exine is lacking, that part is known as the germ furrow, or you can say it is a germ pore. So germ pore के जहाँ से pollen tube is arise. As you know, exine itself, it is made up of sporopollenin protein. It is a protective protein which protect the pollen grain nucleus from the high UV radiation, acidic medium, high temperature, alkaline medium, and you can also say that is giving a protection against the fungi. Okay, so here is the, we can labelize it as the, this is the exine, this is the intine, एंड हियर जो लार्ज सेल है वो लार्ज सेल का न्यूक्लियस, माय डियर स्टूडेंट, वो सेल को वी कैन कंसीडर्ड एज अ ट्यूब सेल. ये जो सेल है, दैट सेल इज़ अ ट्यूब सेल, एंड जो छोटा सा सेल है अलोंग विद द न्यूक्लियस, दैट इज़ अ जनरेटिव न्यूक्लियस. ओके, it is a generative nucleus, and this cell is the with a prominent cytoplasm, that is a tube cell. कि जब pollen tube set on the surface of the stigma, at that time it is going to be produced, or it produced tube within the style. So this is the actually what we are study the structure of the pollen grain. Okay, chalo, so let us move with the further theory. This is what we are exactly discuss: germ pore, exine, intine, tube nucleus within a tube cell, generative cell along with the nucleus. Okay, so now let us move with the next monocoplate. As we discussed, those pollen grain which only having a one germ furrow, that type of pollen grain is considered as a monocoplate. Okay, here as you know, this yellow color substance actually that is showing a thickening of the cellulose, and here there is a protective layer which is made up of special kind of the protein, and that is a sporopollenin. Okay, this is what it exactly showing the monocot pollens. Here the pollen grains with a one pore or furrow, that is known as the monocoplate pollen grain. Okay, what's exactly the study of the pollen grain is said as palynology. तो यहाँ पे पेलिनोलॉजिकल फीचर्स एंजियोस्पर्म वगैरह के पोलन ग्रेन को वी कैन स्टडी, and it is served as a fossil of the plant body. The science of the pollen grain and spores, that is known as the palynology, and here
It represent the male gametophyte of the flowers. Okay, so this is the what we can say, it is a structure of a pollen grain. Okay, so यहाँ पे pollen grain के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करें तो कि when पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, सेलुलर कंटेंट है, वो एग्जैक्टली किससे बना होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, लिपिड, शुगर एंड मिनरल से बना होता है. तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एग्जैक्टली दे आर गिव अ प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द unsaturated fatty acid which is present in the cytoplasm. Okay, पोलन ग्रेन का आपको पता है न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पोलन टेबलेट्स है एंड पोलन सिरप है दैट इज़ यूज बाय द एथलेट्स एंड रेस हॉर्स. तो यहाँ से उसको ज़्यादा इम्यूनिटी और पावर है वो मिलेगा बिकॉज इट इज़ रिच विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो पोलन ग्रेन को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो पोलन ग्रेन के प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे, जिसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट. अदर देन दैट पोलन वायबिलिटी है दैट इज़ डिफरेंट इन द एवरी स्पीसीज. पोलन वायबिलिटी मीन्स व्हाट? इट इज़ द टाइम टिल विच पोलन ग्रेन्स रिटेन कैपेसिटी टू जर्मिनेट. मतलब विद इन अ कितने पीरियड ऑफ टाइम में ये पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सकती है, वो कैपेसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलन की वायबिलिटी. वी कैन से इट इज़ अ पोलन वायबिलिटी, राइट. अदर देन दैट हम लोग अगर ज़्यादा डिस्कस करें तो वीट और राइस के अंदर जो उसकी वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स है. सो यहाँ पे दूसरे भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि सोलेनेसी, फैबिएसी, रोसेसी, वो सभी फैमिलीज़ के अंदर पोलन वायबिलिटी है वो सेवरल मंथ तक की हो सकती है. आई एम शोविंग फ्रॉम हियर क्योंकि दिस थिंग इज़ रिमेनिंग टू राइट. ओके, सो यहाँ से आई एम स्क्रॉलिंग एंड आपको कम्प्लीटली लास्ट तक लिख देना है, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज़ here it is showing what exactly Xenia effect means it is the effect of the foreign pollen on endosperm. और मेटाजेनिया मतलब it is the effect of the foreign pollen on the somatic tissues. We will discuss later on about that. दोनों के जेनिया और वो पोलन की वजह से it gives a specific color to the maize, and metazenia it's a pigmented structure which gives a specific color to the dead palm. पोलन एलर्जी आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द पीरियड में ये पोलन ग्रेन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की वजह से वी फील running nose and sneezing and coughing, so that is leads to the pollen allergy. And this pollen allergy is due to the anemophilic plants in which the pollen grain is transferred with the help of the wind, and it leads to the respiratory disease like the asthma and bronchitis. Okay, so here it's showing an example ki which kinds of the pollen grains mostly affected the respiratory tract or mostly leads to the pollen allergy. So that is the amaranthus, cynodon, parthenium or carrot grass, and Cynopodium and resinus. It's all the plants of which pollen grain is responsible for the causing of the pollen allergy. This parthenium is the weeds that is come to India and in imported wheat. Okay, जब मतलब इंडिया में ये जब वीट वगैरह आए थे तो उसी के साथ ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है वो भी आ गया था. द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. मतलब what they are exactly means to say here is कि pollen grain जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू शुड मेंशन इन योर नोटबुक कि ये भाई जो पोलन ग्रेन की वाबिलिटी मतलब पोलन ग्रेन कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन विच दे आर लिविंग. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो लिक्विड है उसके अंदर अगर हम लोग पोलन ग्रेन को रखें तो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पोलन की वाबिलिटी रह सकती है. ओके,
When pollen is mature, एंथर इज़ डिहाइड्रेट बिकॉज वो जो टेपेटम है अभी उसका भी फंक्शन ओवर हो गया है, और एंडोथेशियम लेयर है जिसके अंदर वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज होने की वजह से इट बिकम रिजिड एंड डिहाइसन. सो फ्रॉम द एंथर, मैच्योर एंथर, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. ओके, एज वी डिस्कस कि पोलन ग्रेन है, इट इज़ अ हैप्लोइड बाय नेचर. तो उसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट इज सेट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, जनरेटिव सेल की बात करें, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ डिवाइड माइटोटिकली एज वी डिस्कस बिफोर कि दिस न्यूक्लियस इज डिवाइड माइटोटिकली एंड इट गिव्स द टू मेल गैमेट्स. ओके, सो द साइटोप्लाज्म which having a two male gametes and both are the haploid which is formed from the generative nucleus after the process of the mitotic division. Okay, most of the pollen grains are shaded in a two-celled stage. Here I am showing you most of the pollen grains are released in a two-celled stage. इन दैट वन लार्ज सेल, उसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और वन स्मॉलर सेल उसको जनरेटिव सेल बोलेंगे. वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल भी है, यू कैन मेंशन ओवर देयर वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल बिकॉज इट गिव्स अ पाथवे और इट secrete lytic enzyme which give or which clear the pathway in the style, and by this means the pollen tube is easily transferred within that. And the generative cell, while it is moving, it is divided mitotically and it give rise into two male gametes. Generative cell and vegetative cells both having a somewhat distinguished characteristic, and that is what it is showing here. The vegetative cells, it's having a nucleus with irregular and having a prominent cytoplasm. Generative cells having a spindle shaped cell and floats in the cytoplasm of vegetative cell, और vegetative cell के cytoplasm में ये generative cell है that is floating because it is a smaller in a sized. Okay, here what exactly they wants to show us: vacuole, cytoplasm and irregular shapes of the nucleus of vegetative cell, and this is the generative cell. टू सेल्ड स्टेज पोलन, तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर टू सेल स्टेज में पोलन है, इट इज़ रिलीज एंड इज टेकन टू द स्टिग्मा बाय द पोलिनेटिंग एजेंट, और 40% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज इन सीटू कंडीशन में होता है जहाँ पे वन जनरेटिव सेल और दूसरा वेजिटेटिव सेल्स होता है. फिर उसमें जनरेटिव सेल से फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू male gametes. Okay, and that is a non-motile as you know. Okay, and two male gametes में से थ्री, मतलब टू मेल गेमेट्स मतलब वो दोनों एक सेल, दो मेल गेमेट्स और दूसरा वेजिटेटिव सेल, मतलब टोटल थ्री सेल कंडीशन हुआ. तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये थ्री सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड हो जाती है. तो कई में टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन होती है. टू सेल स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और थ्री सेल स्टेज में टू मेल गैमेट्स एंड एक वेजिटेटिव सेल. इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन sit on the surface of the stigma. Okay, so three cell stage it's showing excited conditions. Okay, so up till that you needs to write. Other than this, here somewhat when the stigma की सरफेस पे जब पोलन ग्रेन बैठता है तो वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे बैठेगा तो इट स्टार्ट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा, और वो वाटर एब्जॉर्प्शन से जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है इट इंक्रीज. सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से जो पोलन ट्यूब है उसका साइटोप्लाज्म इट इज़ पुश्ड आउटसाइड. सो इन टाइम विल मूव आउटवर्ड टू वार्ड और टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब फ्रॉम द जम्प फरो, और उसकी वजह से ये कुछ ऐसा देखने को लगेगा जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठ जाती है तब.
ओके। सो यहाँ पे इट इज़ शोविंग ये कैलस प्लग है जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल ने सिक्रीट किया होता है, वो कैलस का प्लग होता है, जिससे एक बार मेल गैमेट वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वापस उसका जो बैक फ्लो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। सो एग्जैक्टली ये प्रोसीजर को मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको यहाँ तक ड्रॉ करके कंप्लीट करना है, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके। पर ये एग्जैक्टली प्रोसीजर कैसे होती है दैट आई वुड लाइक टू शो यू कि हाउ इट इज़ अकर एग्जैक्टली। चलो ये दिखाते हैं हम लोग। ये पोलन ग्रेन है व्हेन इट इज सिट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। चलो ये स्टिग्मा की सरफेस पर बैठी है। ओके। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कि ये जो स्टिग्मा की सरफेस है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। ओके। जिससे पोलन ग्रेन जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ड्यू टू द वाटर ऑब्जर्प्शन इट इज़ इंक्रीज एंड हियर आफ्टर फर्दर स्टेज में क्या होगा, ये पोलन ग्रेन है उसमें जो जर्म फरो है वो जर्म फरो में से क्या होगा, ये जर्म फरो में से एग्जैक्टली ये पोलन ट्यूब है वो ऐसे अराइज होगी। ओके। ओके। और यहाँ पे ये चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ये प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा था, ये एग्जाइन बाहर एज इट इज़ रहेगा। ओके। ट्यूब कहाँ से अराइज होंगी, जर्म फरो में से, जर्म पोर में से। ओके। और एट दैट टाइम पहला ये जो साइटोप्लाज्म पुष्ट होगा वो किससे होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस से। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और वेजिटेटिव सेल ने फॉर्म किया था क्या, ट्यूब सेल भी बोला था क्योंकि वो ट्यूब्स को फॉर्म कर रहा था। एंड जब वो मेल गैमेट को हम लोग ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, जब ये जनरेटिव सेल पास हो रहा था तो वो डिवाइड होके टू सेल के अंदर और टू न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स टुगेदरली ये क्या है, टू मेल गैमेट है और बाकी का जो एरिया है इट इज़ प्लग्ड आउट विद द हेल्प ऑफ द कैलस। और ये कैलस के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पुश बैकवर्ड और द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इट इज़ रिमेन इन द pollen grain. Okay, so this is exactly what I want to say you कि when pollen grain is a sit on the surface of the stigma, water absorption से cytoplasmic content is increased, it form a pollen tube which is arise from the germ furrow because वहाँ पे sporopollen layer नहीं होगा तो it is easily pass from that. Okay, so this thing is very easy. Furtherly we have to focus on the structure कि वेयर वी हैव टू मूव विद द कि भाई ये जो पोलन ट्यूब है इट शोविंग केमोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक मतलब इट हैविंग पोलन मतलब पोलन ग्रेन जब बैठती है तब उसी के साथ कंपैटिबिलिटी जो होती है स्पीसीज स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी की वजह से ये स्पेसिफिक प्रोटीन और केमिकल का सिक्रेशन होता है स्टाइल में से दैट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब विद इन दैट। तो स्पेसिफिक स्पीसीज सेम स्पीसीज का ही अगर पोलन ग्रेन उसके ऊपर बैठता है तो दैट थिंग इज़ पॉसिबल। एपिकल रीजन कंटेंट हाई गोल्गी बॉडी, क्योंकि गोल्गी बॉडी का जो सिक्रेशन है वो लाइटिक एंजाइम होते हैं, मींस इट हैविंग अ पैक्टिनेज। तो पैक्टिन वगैरह प्रोटीन पैक्टिन जैसे सब्सटेंस अगर स्टाइल में होंगे तो उसके ऊपर एक्ट करके पूरा जो सॉलिड स्टाइल का एरिया है उसको डाइजेस्ट करके पाथवे को स्मूथ बना देंगे। और कैलस प्लग मैंने बताया दैट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द मेल गैमेट्स। यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है और डिस्कस हम लोगों ने यहाँ तक किया, दैट इज़ अ वेरी इजी वन। ओके, फर्दरली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द पिस्टिल एंड कार्पेल